Hello students, again I am here with a geometry lesson. Myself Kunal S. Thakur, and today we are going to deal with geometry's first chapter, similarity. But before going ahead, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay students, so students, let's start with the meaning of the similarity. Similarity means what? Similarity का मतलब होता है बेटा एक जैसा. Incongruent का मतलब क्या होता है? Equal. What that means? Beta, please pay attention when you are saying that two triangles are similar. Two triangles are similar. In that case, students, triangle maybe one of the triangle will be small or one of the triangle will be bigger. एक छोटा एक बड़ा हो सकता है. When you are talking about similarity, इसका मतलब triangles छोटे बड़े हो सकते हैं. उनके साइड्स का प्रपोर्शन होना चाहिए. That means if this is A, B, C, this is P, Q, R. इसका मतलब है बेटा AB, this side AB upon PQ should be equals to BC upon QR और AC is equals to AC upon PR. मतलब साइड्स के प्रपोर्शन इक्वल होने चाहिए बेटा. ये मीनिंग होता है सिमिलैरिटी का. एंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही होना चाहिए. इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, अनुपात में सही होना चाहिए. एंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. बट इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन जब आप कोई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, दैट मीन्स आपके ट्रायंगल्स के साइड भी इक्वल होने चाहिए, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए बेटा. दैट मीन्स इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. बट इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ओनली कॉन्ग्रुएंट पार्ट विल बी एंगल्स एंड साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. सिंपल कंसेप्ट याद रखो बेटा. कॉन्ग्रुएंसी में दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, सिमिलैरिटी में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. ओके, और साइड्स कैसे होने चाहिए बेटा? प्रोपोर्शनल. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सिमिलैरिटीज ऑफ द ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स these three formulae. As all of you know, what is area of triangle? It is half into base into height. 8, 9, 10 आपने सब में फॉर्मूला पढ़ा बेटा. एंड दैट मींस when the area of triangle 1 upon area of triangle 2, when there is a proportionality. Okay, that means जब आप area of triangle upon area of triangle करोगे, so half of it get cancelled, half of का खाली क्या बचेगा बेटा? base 1 into height 1 upon base 2 into height 2. बेस 1 हाइट 1 ट्रायंगल 1 के होंगे, बेस 2 हाइट 2 सेकंड ट्रायंगल के होंगे बेटा. सिंपल सी बात है ना. हाइट क्या होगा? ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल क्या होगा? एरिया में हाफ हाफ कैंसिल होंगे. बेस 1 अपॉन हाइट 1, बेस 2 अपॉन हाइट 2. ओके, सिंपल द फॉर्मूला बेटा. नाउ व्हेनेवर हाइट विल बी सेम, मतलब व्हेन ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, जब ट्रायंगल्स का हाइट सेम होगा तो हाइट हाइट भी कैंसिल हो जाएगा. खाली क्या बचेगा बेटा? बेस अपॉन बेस. And when triangles have same base, जब उनका base same होगा तो height upon height. So these three formulas will be used in your first exercise 1.1. So students, before moving to 1.1, you should understand three concepts first. What is similarity? Similarity क्या होता है? जब triangles के angle congruent हो और sides proportional में हो. What is congruency? When triangles have same congruental side and congruental angle, दोनों चीज congruent होनी चाहिए. Third, these three formulae, area of triangle upon area of triangle क्या हो? Base into height, base into height. Height height same तो base upon base, base base same तो height upon height. Okay students, please memorize these three formulae. Then we are going to first exercise, okay, of a test book. Let's start with the first question. As you all know, what is first question? In your first question, the given data is base of first triangle, that is B1. First means 1 डाला मैंने.
first triangle B1 is equal to 9 units. Height of the first triangle is 5 units. Base of the second triangle B2 is 10 units. And height of the second triangle H2 is equal to 6 units. Now please pay students, आपको क्वेश्चन में कोई भी यूनिट्स नहीं दिया होगा तो आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है. ओके स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस फाइंड. In this question, you have to find ratio of area of two triangles. What you have to find? Ratio of area of two triangles. In solution, so we will use our first formula बेटा. ना तो आपको कुछ हाइट के बारे में बोला है, ना तो आपको कोई बेस के बारे में बोला है कि इक्वल है. So we will use this formula, students. Now, in solution, ratio of area of two triangle, that is area of first triangle upon area of second triangle. फर्स्ट ट्रायंगल के लिए क्या करता है? बेस 1 इनटू हाइट 1. सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस 2 इनटू हाइट 2. मींस मैंने ऐसे फॉर्मेट में लिखा है. बेस 1 B1 का वैल्यू 9 इनटू 5 अपॉन 10 इनटू 6. 9 5 जा 45, 10 6 जा 60. उसके बाद बेटा मैंने 15 से डिवाइड कर दिया है. तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60. So finally I will write ratio of area of these two triangle is 3:4. प्लीज पे स्टूडेंट्स, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ज्योमेट्री में. आपको क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन सेकंड ट्रायंगल के लिए यूजफुल फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुटअप्स करने हैं और सॉल्व करना है बेटा. सो स्टूडेंट्स, यू गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन. प्लीज कॉपी दिस. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. दिस इज अ डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक. आप जैसे देख लो बेटा, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी. दो ट्रायंगल है. डायग्राम देखते ही अपने को समझ में आता है बेटा, ए बी इस ट्रायंगल का बेस है और नीचे वाले ट्रायंगल का भी ए बी बेस है. मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है. सो स्टूडेंट्स, गिवन डेटा आपको दिया हुआ है BC इज परपेंडिकुलर टू AB एज वेल एज AD इज परपेंडिकुलर टू AB. दोनों परपेंडिकुलर है. BC का वैल्यू 4 यूनिट, AD का वैल्यू 1 यूनिट आपको दिया हुआ है. और आपको पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. मतलब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है. सो हाउ वी विल स्टार्ट? इन केस ऑफ सॉल्यूशन व्हाट वी विल राइट फर्स्ट? आप पहले लिख दो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD हैव सेम बेस. उनका बेस सेम है और उस बेस का नाम क्या बेटा? AB. Therefore, area of triangle first upon area of triangle second, that is area of triangle ABC upon area of triangle ADB क्या हो जाएगा बेटा? Height BC upon height AD. Height upon height क्यों होगा बेटा? Because triangles have same base. Triangles have same base. So BC का वैल्यू 4, AD का वैल्यू 8. 4 upon 8 1.2 हो जाएगा बेटा. और फाइनली आप अपना आंसर कंक्लूड कर दोगे बेटा. ओके स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब ट्रायंगल्स का बेस सेम होगा तो हाइट अपॉन हाइट हो जाएगा बेटा. ये अपना थर्ड फॉर्मूला है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. इन योर क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ डायग्राम जो आपको दिया गया बेटा. दिस इज R Q S P T और आपको क्या लिखते हैं? That PS is perpendicular to RQ. मतलब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. आपका फर्स्ट गिवन QT is perpendicular to PR. ओके, आपको दिया है और आपको RQ, PS और PR का वैल्यू भी दिया होगा 6 6 12. आपको QT पूछा है. QT ना कैसे पता चलेगा बेटा? व्हाट इज QT? QT एक्चुअली में है क्या बेटा? अगर ध्यान से तो QT एक हाइट है इस बेस का. तो आपको हाइट पूछा है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. QT कौन से ट्रायंगल में है बेटा? PRQ या PQR जो आप बोलो बेटा. सो मैंने लिखा दिया सॉल्यूशन में, फॉर ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज हाफ इनटू बेस PR. और PR के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? QT. तो जब बेस PR लोगे तो हाइट QT होगा. फिर से लिखते हैं बेटा, फॉर ट्रायंगल PQR अगर आप बेस PR लेते हो तो हाइट QT हो जाएगा. इसी ट्रायंगल के लिए अगर आप बेस QR लोगे, QR
तो क्यू आर पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पीएच, तो पीएच आपका हाइट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी का क्या होगा, हाफ इनटू बेस आरक्यू, आरक्यू भी ले सकते हैं और हाइट पीएच, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का फॉर्मूला बेटा, हाफ इनटू पीआर इनटू क्यूटी, हाफ इनटू आरक्यू इनटू पीएच। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट बेटा, कि ये पार्ट सेम है तो ये पार्ट सेम होगा, तो हाफ। सो स्टूडेंट्स कंपेयरिंग 1 एंड 2, जैसे हम दोनों 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये पार्ट सेम है तो ये पार्ट भी सेम होगा, दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस भी सेम होगा। तो हाफ इनटू पीआर इनटू क्यूटी विल बी इक्वल टू हाफ इनटू आरक्यू इनटू पीएस, दोनों का हाफ हाफ कैंसिल, पीआर का वैल्यू 12, क्यूटी ऐसे लिखा उसको तो फाइंड आउट करना है, हाफ कैंसिल हो गया बेटा, आरक्यू 6 है, पीएस भी 6 है, तो 12 इंटू क्यूटी इज इक्वल टू 6 6 36, 12 से मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड हो जाएगा, 3 यूनिट्स आपका आंसर आएगा। फाइनली यू विल राइट लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यूटी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समथिंग डिफरेंट है एक्सरसाइज में, याद रखना है अपने को, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रायंगल पीक्यूआर के दो एरिया निकालने हैं, एक पीआर के लिए एक आरक्यू के लिए, कंपेयर करना है, वैल्यू पुट अप करना है और अपना आंसर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी दिस। So students, let's start with question number 4 now. So बच्चा लोग, you can see ये दोनों parallel line है, these two are parallel lines. What is mean by parallel lines? Parallel lines को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? The distance between the lines is similar throughout the length. मतलब ये distance throughout the length same रहेगा. Okay बच्चा? एंड क्या दिया बेटा, AP is perpendicular to BC. ये तो इंफॉर्मेशन आपको दिया है और आपको बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। आपको एबीसी और एबीबीसी का रेशियो निकालना है बेटा, बहुत सिंपल है बेटा। क्या है बेटा, सिंस ट्रायंगल सिंस सेगमेंट एडी पैरेलल है बीसी के, एपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, सो आपको दिख सकता है ट्रायंगल एबीसी का भी बेस बीसी है और डीबीसी का भी बेस बीसी है, दोनों का बेस तो सेम है बीसी और दोनों का हाइट भी एपी सेम होगा बेटा, ट्रायंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस। सो दोनों का बेस एबी, दोनों का हाइट एपी, एबी अपॉन एबी, एपी अपॉन एपी कैंसिल हो जाएगा बेटा, एबी अपॉन एबी, एपी अपॉन एपी कैंसिल के 1:1 का रेशियो देंगे, तो फाइनली वी विल राइट आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 1:1। यहां पे आप लिख सकते हो ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कॉपी करो बेटा फटाफट, यू कैन कॉपी दिस। So students, now moving to question number 5. Question number 5 में आपको ये डायग्राम है बेटा, A B C P Q D, ठीक है, और आपको 4 चीज पूछा है बेटा, एरिया ऑफ P Q B, PBC, PBC, ABC, ABC, ADC, ADC, PQC आपको दिया है बेटा। हम लोग 1 by 1 सबको देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, where is PQB? PQB की तरह PQB, इसका हाइट क्या है PQ, बेस क्या है PBQ, ठीक है, PQ बेस BQ। दूसरा रेखा कौन सा है बेटा, PBC, PBC का भी हाइट कौन है बेटा PQ। मतलब दोनों ट्रायंगल में चाहे हम PQB बोले और PQC बोलेंगे, PQ हाइट है। सो ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव सेम हाइट, दैट इज PQ। PQ सेम है दोनों का, इसलिए PQB का बेस BQ अपॉन BBC का बेस BC लिख देंगे, तो BQ अपॉन BC तुम्हारा पहला आंसर हो जाएगा। हाइट सेम है दोनों का PQ, तो दोनों का बेस लोगे आप। सेकेंड क्वेश्चन, P
ए बी सी, पी बी सी, ए बी सी। नाम में दिखा बेटा बीसी बेस दोनों का है, पीबीसी का भी बेस बीसी है, एबीसी का भी बेस बीसी है, तो दोनों का बेस सेम है, बीसी सेम है। इससे दोनों की हाइट लेंगे बेटा, तो पीबीसी का हाइट क्या है पीक्यू और एबीसी का हाइट क्या है एडी, तो अगर आपका आंसर पीक्यू अपॉन एडी। थर्ड एबीसी बोलता है और एबीसी बोलता है, एबीसी और एबीसी दोनों का हाइट सेम है बेटा, दोनों का हाइट एडी है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का बेस अपॉन बेस लिखेंगे, तो ए बी सी का बेस कौन है बीसी और ए बी सी का बेस कौन है डीसी, तो बीसी अपॉन डीसी तुम्हारा आंसर होगा, तो बीसी अपॉन डीसी। लास्ट ए डी सी और पीक्यूसी है, पीक्यूसी। सो स्टूडेंट्स एडीसी पीक्यूसी में कुछ भी सेम नहीं है, इसका हाइट ये है, इसका हाइट ये है, इसका बेस यहां से क्यू से सी तक है, इसका डी से सी तक है, तो कुछ भी सेम नहीं है, तो हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, पहले का हाइट एडी इंटू बेस डीसी, दूसरे का हाइट पीक्यू इंटू बेस क्यूसी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बेटा ये अपना हमने वैल्यू लिखी है, वैल्यूज नहीं है तो हमने वैल्यूज नहीं रखा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, आपका पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया, सिंपल था, हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस, और कुछ भी सेम नहीं है तो दोनों लिखने का बेटा। सो डिड यू अंडरस्टैंड? सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर सिमिलैरिटी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।